So today we are going to start. Our next topic is physical vapor deposition. So it is already written that physical vapor deposition. That means that deposition will take place in the form of vapors, right? So this is called PVD, physical vapor deposition. So in this method, see, we already discussed about the physical method to produce atom to deposit on the substrate, like evaporation, sputtering, where we are dealing with the, means we are heating the substrate, we are heating the material and it will evaporate. And by any means you are excited the material with the any kind of with the chemical, with the electric discharge, or even thermal evaporation also can be done. So amongst any method you can do evaporation, right? So here we discussed about evaporation. Here we are discussing about evaporation, and sputtering is also the same kind of thing, right? So sometimes called vacuum deposition because the process is usually done in the evacuated chamber. मतलब हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, evacuated, बिल्कुल आपका vacuum condition होगा, there is no air, so that condition is required for PVD, physical vapor deposition. It is used for metals. ये जो method है, this is normally used for metals. Dielectrics also can be deposited by using specialized equipments. So this is the advantage of this evaporation method. We can deposit it metal as well as dielectrics, right? Clear है यहाँ तक? Wise are ये सभी को clear? Yes, sir. Okay. So evaporation, what is the meaning of evaporation? It is a in general terms, we are using evaporation. It is a thermal energy supplied to the crucible or boat to evaporate atom. So this is a simple method where you are supplying a thermal energy to the crucible or boat which having some material, and the material is evaporated, right? And evaporated atom travel through the evacuated space between the source and the sample and stick to the sample, right? इसमें कोई डाउट? मतलब आपने क्या किया, एक सैंपल को गर्म किया और उससे आपका जो इवेपोरेशन है उसको एक पॉइंट पर आपने क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, मतलब एक जगह स्टिक कर दिया, राइट? So this is the simple method of evaporation, and this is the that means there are some chemical reaction occurs due to low pressure and can force a reaction by flowing a gas near the crucible, right? Surface reaction usually occur very rapidly, and there is little rearrangement of the surface atom after sticking. एंड देर आर, जैसे यहाँ पर आपका जो फिल्म है ना, उस फिल्म में आपका जो इवेपोरेशन होकर जो पूरा एटम्स जो है एक पूरा एक लेयर इससे बनता जाएगा, तो उससे एक सरफेस टोपोग्राफी बन जाएगा और एक एक लेयर्स उसमें फॉर्म होते जाएगा. क्लियर? इज इट ओके? दिस स्लाइड इज ओके? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? स्लाइड का फ्रंट पेज भी दिखाई दे रहा है. अच्छा, 1 मिनट.
आई एम चेकिंग लिस्ट। अभी दिख रहा है आपको? नहीं सर, फ्रंट पेज से दिखाई दे रहा है जहाँ पर ISBN यूनिवर्सिटी लिखा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब आया? यस सर। ठीक है। ललिता आप ज्वाइन कर लिए हो क्या? चितेश्वरी? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड स्लाइड पे था कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपका जो थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड टू द क्रूसिबल और बोट टू evaporate atoms, and evaporated atoms travel through the evacuated space between the source and the sample and stick to the sample। मतलब आपने क्या किया, एक जो क्रूसिबल में जो मटेरियल है उस मटेरियल को हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, एंड विद दिस थर्मल एनर्जी दिस मटेरियल इज इवेपोरेटेड एंड दिस विल बी गोइंग टू स्टिक टू द सबस्ट्रेट, राइट। इसमें वही चीज लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से आपका एक लेयर्स जो है वो फॉर्म होंगे। देयर आर you will find so many layers to in this complete exercise, right। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हम लोग यहाँ पर मटेरियल को थर्मल एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में ये जो है वो स्टिक होगा उसमें, राइट। वो स्टिक होगा किसी सबस्ट्रेट में, जो कल हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सबस्ट्रेट में स्टिक होगा, तो वही सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये इस तरीके का पिक्चर है अपने पास। आप स्लाइड को थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो मटेरियल है वो आपका वैक्यूम सिस्टम है और यहाँ पर हीटर है जिसपे सोर्स मटेरियल रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका वेफर जो सबस्ट्रेट जो बोल रहा हूँ वो सबस्ट्रेट यहाँ पर स्टिक होगा, राइट। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। क्लियर है? अब देखो होता क्या है कि जब यहां से ये जो आपका जो एरिया है, यहाँ से जब ये हीटअप होगा और इवेपोरेशन होकर यहाँ पर पहुंचेगा, तो देखो मैंने लाइन को कैसे किया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा किया। उसका मतलब क्या है, उसको लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉलिजन इज पॉसिबल, कॉलिजन पॉसिबल है, इज इट? देखो यहाँ पर अगर कोई भी एयर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये उस पार्टिकल से टकराकर जो एटम पार्टिकल्स हैं वो जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो वे है, पाथ है, वो डायरेक्ट उसको जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, राइट। जैसे ये एरो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें कोई भी गैस होगी तो इसका जो मीन फ्री पाथ, क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप जितना मीन फ्री पाथ बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही आपका सैंपल का जो फॉर्मेशन है उतना ही इफेक्ट होगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी एयर नहीं होगा जिससे कि वो इजीली यहाँ से यहाँ तक वो पहुंच जाएगा, और इस वेफर होल्डर में जो वेफर लगा हुआ है उस वेफर से क्या हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर। तो अगर इसमें वैक्यूम यूज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, वो क्लियर हुआ आपको? और वैक्यूम यूज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और वैक्यूम यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये चीज अभी जो है क्लियर आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये एक मेन फ्री पाथ का एक
डायग्राम है, तो इसको भी अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, मीन फ्री पाथ का छोटा सा फार्मूला है। इट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई d0 स्क्वायर n। यहाँ पे d0 जो है डायमीटर ऑफ इवेपोरेंट एंड n इज द, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ललिता, आप ज्वाइन हो गए हो? जी सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 63% ऑफ molecules undergo a collision in a distance less than lambda। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो लैम्डा, इसी को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो वो 63% मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो कॉलिजन सफर करते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड अ मीन लेस मीन फ्री पाथ। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा प्रेशर पे डिपेंड करता है। यू कैन सी दैट 0.05 डिवाइड बाय पी, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो आपका जो गैस का जो प्रेशर है, जो आप नॉर्मली जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, उस पर ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन में मेन फ्री पाथ को कम होना चाहिए, क्योंकि जितना मेन फ्री पाथ कम होगा उतना कॉलिजन कम सफर करेगा और उतना ही इजीली एटम जो है वो दूसरे तक वो पहुंचेगा। मतलब वहां से जो मूवमेंट का जो कंडीशन है, यहाँ से जो यहाँ पहुंचना था, वो मूवमेंट में कम टाइम लगेगा। उसको जितना कम टाइम लगेगा उतना ही आपका इफेक्टिव होगा, राइट? अब ये देखो कि वैक्यूम इज ऑलमोस्ट 10⁵ टॉर होता है। कितना होता है? 10⁵ टॉर। टॉर मीन्स ये जो प्रेशर, मतलब जो वैक्यूम गेज जिससे नापते हैं ना, उसका ये यूनिट है। एंड सोर्स हीटर जो है वो आपका मोलिब्डेनम और टेंटेनम, ये फिलामेंट्स यूज करते हैं हम लोग। और कॉन्स्टेंटिन फिलामेंट्स जो नॉर्मली सोडियम और पोटेशियम का होता है, उसके थ्रू यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो बीम है, that is also there। तो these are the specification, you can read it out। इसको थोड़ा सा आप लोग एक करके देखते जाइएगा। तो ये पूरा एक सेटअप है। इस सेटअप का यूज हम लोग करते हैं। ये पूरा एक, आप इसको YouTube में बहुत सारे इसके सेटअप के वीडियोस आपको दिख सकते हैं इसमें। देखो पीवीडी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लो प्रेशर एंड रीजनेबल डिस्टेंस, राइट, बिटवीन सोर्स एंड वेफर। तो इवेपोरेंट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू द वेफर। स्टेप कवरेज is close to 0 if the source is small and we can treat it as a point source। if the source emission is isotropic, isotropic मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आपका जो सोर्स है और ये चारों डायरेक्शन में एक ही जैसे जा सकता है। इट कैन मूव इन अ एनी डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। और यू कैन से जैसे बल्ब है तो सबका, उसमें सबका लाइट जो है सब जगह सब डायरेक्शन में एक जैसा निकलेगा ना, तो इसको आइसोट्रॉपिक बोलेंगे अपन। तो इट इज इजी टू कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द सरफेस ऑफ द वेफर। ठीक है, तो ये आपका वेफर होल्डर का जो ट्रेजेक्टरी है, पॉइंट सोर्स और जो भी है, तो इसको आप देख सकते हो। देखो आप जब लैब्स में काम करने जाओगे ना, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करेंगी। आपको ये सब मैकेनिज्म पता होना चाहिए, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड दैट
you are able to do this work. देखो यहाँ पर ये जो ओमेगा है that is 2 pi means 360 डिग्री, मतलब वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, right? And the depollution velocity is defined by this formula. A number of atoms that hit the area of the surface is this we can define by this area. अब यहाँ पर ये जो evaporation जो वैल्यू है, so this is called this, ये वाला स्लाइड में आपको शेयर करूंगा। तो ये पीवीडी में आप देख सकते हो कि इंडियम एल्युमिनियम जो वेपर प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर which is required to evaporate, you can see sodium require very less amount of temperature, indium, aluminum, gallium, aurum, nickel, chromium, platinum, तो ये सब अलग अलग टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो you must be able to know that what temperature requires for a material to evaporate, क्योंकि हर मटेरियल का इवेपोरेशन जो रेट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और you also see that this is in between vapor pressure and temperature, तो वेपर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर, जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राइट, ज्यादा होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा लगेगा, और वेपर प्रेशर जब कम होगा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर स्लाइटली कम लगेगा। So this is the velocity. So this is the trajectory of your wafer, कि वेफर किस तरीके से पॉइंट सोर्स पे डिपेंड है। So non-uniformity of evaporants can occur when angular emission of evaporant is narrower than ideal source. क्रूसिबल का जो ज्योमेट्री है, मेल्ट डेप्थ और मेल्ट एरिया का जो रेशियो है, डेंसिटी ऑफ गैस एटम्स ओवर द सरफेस ऑफ द मेल्ट, उस पर बहुत कुछ इसमें डिपेंड करता है। These are the factor which affects the evaporation rate. तो evaporating alloys is difficult because of the differing vapor pressure, क्योंकि alloy में क्या होता है कि more than one element is there, so that's why it's very difficult to maintain the vapor pressure, क्योंकि दोनों मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर लगेगा, तो उस कंडीशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जो ई बीम्स जो है फॉर मल्टीपल सोर्सेस वी आर यूजिंग, तो उससे क्या होता है कि वो ये प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाती है। कंपाउंड्स आर आल्सो हार्ड टू evaporate because the molecular species may be different from the compound composition, and energy provided may be used to dissociate compound. जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी इवेपोरेशन पॉसिबल है, उसके लिए ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं, क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीजन को फ्लो करते हैं। सो इवेपोरेशन का जो एडवांटेज है, एडवांटेज की ये आपका वेफर को जो है बहुत ही स्लाइट डैमेज करते हैं। डिपॉजिटेड फिल्म आर यूजुअली वेरी प्योर, लिमिटेड स्टेप कवरेज। और डिसएडवांटेज क्या है, इट आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। मटेरियल विथ लो वेपर प्रेशर आर वेरी डिफिकल्ट टू इवेपोरेट, जिसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल, हाई टेम्परेचर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ये सबको इवेपोरेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्लीनिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लिमिटेड स्टेप साइज आर देयर। आपका जो थिकनेस ऑफ जो फिल्म है उसमें भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। So this is the step coverage, इसमें अपन नहीं जा रहे हैं इसमें। तो पीवीडी के जो अदर मेथड्स हैं उसमें एक है स्पटर डिपोजिशन। स्पटर डिपोजिशन में हम लोग डीसी, आरएफ या रिएक्टिव
जो भी मेथड यूज करेंगे उसी के नाम के हिसाब से दिस नेम विल बी चेंज एज डीसी स्पटरिंग, आरएफ स्पटरिंग या रिएक्टिव स्पटरिंग, बायस sputtering, magnetron sputtering, right? Collimated and ionized sputter deposition, hot sputter deposition. These are the various types of sputtering. मतलब आप जिस मेथड से इसको हीट अप करोगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, राइट? क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? ओके सर। तो ये जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, ये जो स्पटरिंग का जो ये इतना बड़ा सेटअप होता है, ये पूरा सेटअप है आपका स्पटरिंग का। तो स्पटरिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अभी सिलेबस में आपका नहीं है। हम लोग अभी जो सिलेबस में होगा उसी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्पटरिंग का देखो ये पूरा सेटअप है, इसमें वैक्यूम सिस्टम है, प्लाज्मा आल्सो जनरेटेड, राइट? तो इलेक्ट्रॉन बीम, केमिकल वेपर डिपोजिशन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। अभी स्पटरिंग बस देख लो कि क्या है स्पटर सोर्सेज और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो in this lecture just I wanted you to understand what is physical vapor deposition और physical vapor deposition में किस तरीके से हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वो यहाँ पर हमको क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो